A sedition case was lodged against Congress Vice President Rahul Gandhi, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, CPIM General Secretary Sitaram Yekkari and 6 others in Hyderabad on Sunday, deepening a row over alleged anti-national speeches at Delhi's Jawaharlal Nehru University that has seen violent protests and fractious parliament sittings in recent days. A first information report, FIR, was registered at Saranagar police station under Cyberabad Police Commissionerate on the direction of a metropolitan magistrate, who was urged to book the 9 people by a group of lawyers. Congress leaders Anand Sharma and Ajay Maken, CPI leader D. Raja, JDU spokesperson KC Tyagi, JNU President Kanhaiya Kumar and JNU research scholar Amar Khalid are the others named in complaint. It is a court-referred matter. Following the court's directive, a case under Section 124A of the IPC, sedition, has been registered yesterday, Saturday, against 9 persons, including Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, Sitaram Yekkari, JNU President Kanhaiya Kumar and others, Saranagar Police Station Inspector S. Lingayya said on Sunday. The court has posted the matter for hearing on March 4. It passed the orders for the FIR on a complaint by Janardhan Goud and 2 other lawyers, who moved the court after police refused to register the case. They alleged that anti-India slogans were raised during a protest organized at JNU on February 9 against hanging of Parliament attack convict Afzal Guru. They also complained that on February 13 Rahul Gandhi and other leaders visited the Jawaharlal Nehru University to support of the students who had participated in protests against the nation. These students and leaders like Rahul Gandhi, D. Raja and others are violating the constitution by supporting the anti-nationals, said the petitioner. Kanhaiya and Khalid have been arrested by Delhi police. It was Kanhaiya's arrest that sparked nationwide protests and outrage from the Bharatiya Janata Party's rivals, especially the parties of Gandhi, Yekkari and Kejriwal, who said the union government was cracking down on free speech. In the days since the arrest on February 12, doubts have emerged over the authenticity of the video footage, which was the basis for the original complaint of sedition against the students. In his petition, Goud said he has every right to question those who are indulging in anti-national activities and also those who are encouraging anti-nationals in the name of solidarity for those who are facing criminal charges under Section 124A of IPC. दिल्ली की पूरी कैबिनेट राष्ट्रपति जी से मिली और उनको दिल्ली में बिगड़ते हुए हालात के बारे में जानकारी दी। मोटे मोटे तौर पे 2-3 बातें हमने प्रधानमंत्री जी को बताई, राष्ट्रपति जी को बताई। हमने उनसे कहा कि भारत विरोधी कुछ जगहों पर नारे लगाए गए, ये बहुत गलत है और ये बड़े खेद की बात है कि आज कई दिनों के बाद भी केंद्र सरकार दोषी जिन लोगों ने नारे लगाए उन दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है। केंद्र सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ रही, क्यों नहीं पकड़ पा रही, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, राष्ट्र विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई स्टूडेंट्स नहीं कह रहे कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हैं, कोई टीचर्स नहीं कह रहे, कोई पार्टी नहीं कह रही। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो केंद्र सरकार आज इतने दिनों के बाद भी क्यों नहीं उनको पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उनको पकड़ रही है? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो केंद्र सरकार उनको पकड़ना नहीं चाह रही है ताकि मुद्दा बना रहे, बहाना बना रहे और देश सुलगता रहे, और या 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई।
जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए वो 4 स्टूडेंट्स इनसे नहीं पकड़े जा रहे, इनसे पठानकोट क्या पकड़ा जाए, पठानकोट के आतंकवादी क्या पकड़े जाएंगे। इसका मतलब बिल्कुल नाकाम है, वो पकड़ना नहीं चाहते वो लोग। दूसरी चीज हमने राष्ट्रपति जी को कही कि पिछले 2 दिन में जो घटनाएं घटी हैं पटियाला हाउस के अंदर, ये बहुत ही दुखद घटना है। कल सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहे थे कि कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहां पे हियरिंग जो है, हियरिंग के दौरान पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई, जो वहां पे स्टूडेंट्स के टीचर्स के साथ मारपीट हुई, इस किस्म की घटना नहीं घटनी चाहिए। पटियाला हाउस सुप्रीम कोर्ट से 200 मीटर दूर है, शायद 200 मीटर भी नहीं है, और पुलिस को स्पेसिफिकली कहा गया कि आप ये कीजिए, और पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी रही। क्यों? पुलिस यूनिफॉर्म्ड फोर्स है, पुलिस आदेश देती है, पुलिस अपने से कुछ डिसीजन नहीं ले सकती। पुलिस को उनके आका जो आदेश देंगे, पुलिस को कहेंगे डंडे चलाओ तो पुलिस डंडे चलाएगी, पुलिस को कहेंगे चुप रहो कुछ मत करो तो कुछ नहीं करेगी, पुलिस को कहेगी गोली चलाओ तो गोली पुलिस तो वही करेगी जो उनको कहा जाएगा। तो इसका मतलब पुलिस को उनके आकाओं ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था चुप रहो कुछ मत करो, खड़े रहो। तो इसका मतलब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि हम आपके आदेश नहीं मानेंगे, जो कर सकते हो कर लो। केंद्र सरकार ने खुली चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट को कि हम तुम्हारे आदेश नहीं मानेंगे, जो कर सकते हो कर लो। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के 200 मीटर के अंदर लागू होने बंद हो गए तो इस देश के अंदर कोई संविधान नहीं बचेगा। फिर तो केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री जी की डिक्टेटरशिप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नो जुडिशरी आफ्टर दैट। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने 200 मीटर के दायरे के अंदर, कल केंद्र सरकार ने खुली चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपके आदेश नहीं मानते, जो कर सकते हो कर लो। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। तीसरा, अब ये पटियाला हाउस में बीजेपी के एक एमएलए ने और कुछ गलत तत्वों ने स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया। आप लोगों के तो सारे कैमरे के अंदर है। स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया, पत्रकारों के ऊपर हमला किया, निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया। उनसे पूछा भाई क्यों हमला किया, कहते जी पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। पता नहीं लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे, तो अब ये और फिर पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, इसका मतलब किसी का कत्ल कर दो। भारत विरोधी नारे लगा रहे थे जी, किसी का कत्ल कर दो। तो अब ये हो गया कि कोई किसी का कत्ल कर दे तो पुलिस जाएगी पूछेगी हमें क्यों करा कत्ल, तो कहेगा जी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा था। तो चलो अच्छा ठीक है जाओ, माफ किया। ये नया कानून बना इस देश के अंदर। ओपी शर्मा अभी तक खुलेआम क्यों घूम रहा है? वो जो गुंडे थे जिन लोगों ने पत्रकारों को पीटा, वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? ये नया कानून बना है, कोई किसी का कुछ भी कर देगा। और बाहर जब फिर पुलिस कहेगी भाई क्यों कर रहा था, देश के विरोध में नारे लगा रहे थे जी। तो ये बड़ा अच्छा बड़ा नया कानून बन गया इस देश का कि देश के विरोध कौन तय करेगा, देश के विरोध। फिर बंद कर दो सुप्रीम कोर्ट को, बंद कर दो हाई कोर्ट को। तो ये तीसरी चीज हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को बताई। और आज सुबह से इनके फोन पे इनको मार डालने की धमकियां आ रही हैं। बार बार वो जो कॉल रूट होती है ना, आता है अननोन सा आ जाता है +301 कपिल मिश्रा को, +301 +3011 इस किस्म के। हैं जी, हाँ जी, वो वाली कॉल्स आ रही हैं इनको सुबह से कि बहुत बोल रहा है तू जेएनयू के ऊपर, तेरे को जान से मार डालेंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। हम उनको कहना चाहते हैं ये तुम्हारी गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं है, जो तुमने करना है तुम करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मंत्रियों को इस तरह की कॉल्स आ रही हैं तो ये देश किस दिशा के अंदर जा रहा है। ये सब चीजें हमने राष्ट्रपति जी को कही, लेकिन मैं फिर से केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूं कि अभी भी स्थिति बिगड़ी नहीं है, इसको संभाल लीजिए, इसको और मत बिगड़ने दीजिए। ये देश नो, आई थिंक विल डिसाइड एंड सेंड इट नाउ। Represents that voice, and if we disagree with them, they might disagree with us, but we give them the right to shout over there. I feel proud that in my country they have the right to wave a black flag in front of my face. The most anti-national
the people who are supposed to rise of this institution, not only this institution, not only us, not only everybody sitting here, but there are more than 1 billion people in this country who believe what you're believing and who are standing high. कितनी देर तक हाथ में रखेगा? चिप दे दूंगा, पार्लियामेंट हाउस में बैठा था। चिप दे दूंगा, ट्रांसफर बैठ जा रहा। और प्रेसिडेंट का ड्रेस तो मैं सुन रहा था। और प्रेसिडेंट का ड्रेस में सरकार ने अपने अचीवमेंट के बारे में बोला, मगर जो रोहित के साथ हुआ में किया जा रहा है, जो युवाओं की आवाजों को दबाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो हरियाणा में हो रहा है उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और मैं सोच रहा था, उनके भाषण को सुनते हुए मैं सोच रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था भाषण के बारे में, और सोचते सोचते मुझे बात समझ आई कि पूरा का पूरा भाषण बीते हुए समय का था। वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या करा, और मैंने सोचा कि यही आरएसएस की सोच है। वो बीते हुए समय की बात करते हैं, आज की और कल की बात नहीं करते। जो रोहित था वो आज की और कल की बात कर रहा था, भारत के भविष्य की बात कर रहा था। और वो पूरे हिंदुस्तान को कह रहा था कि मेरे दिल में दर्द है, मुझे कुचला जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है। मैं इस देश के भविष्य के लिए लड़ना चाहता हूं, इस देश को बेहतर बनाना चाहता हूं। और आरएसएस के लोगों ने उससे कहा, नहीं, हम भविष्य की बात नहीं करना चाहते हैं, हम भविष्य की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम बीते हुए समय की बात करेंगे। और अगर तुमने भविष्य की बात की तो हम तुम्हें कुचल के मार देंगे। और यही काम वो हर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जहां भी हिंदुस्तान का नौजवान कल की बात करना चाहता है, नई सोच की बात करना चाहता है, भविष्य की बात करना चाहता है, वहां आरएसएस के लोग उसे कहते हैं, नहीं, तुम कल की बात मत करो, आज की बात मत करो, हमें सिर्फ बीते हुए समय की बात करनी है। नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे सब विद्यार्थियों का होगा और हिंदुस्तान के भविष्य का होगा। हम एक ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां सिर्फ एक सोच सबके ऊपर थोपी जाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये चॉइस हो, ये फ्रीडम हो कि जो उसके दिल के अंदर है वो बाहर बोल पाए। ऐसे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ना चाहते हैं, ऐसे हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का नौजवान लड़ना चाहता है। With regard to JNU, they said the security guards have given the evidence that these slogans were shouted. One security guard there, by an agency appointed by the university, and that is taken as evidence. There is a committee that was formed, the proctorial committee by JNU, that settled that issue. After that, it was reopened again by the ministry, and then all the rest of it follows, what we all described yesterday. So all based on untruths. I'm sorry to say. They're all based on untruths, manufactured department of manufactured things. And I must beseech to you, without any of these facts being established, nothing should go on record of this parliament. Nothing should go on record of this parliament, otherwise give us that adequate amount of time. Are you permitting any quotes from cyberspace to be treated as evidence? Are you permitting such untruths to be said
and gotten away with because there is no time for discussion. Are you going to permit this sort of a thing? And what about Mahishasura, sir? You come from a state called Kerala. You observe a festival called Onam. Do you know what Onam stands for? Malayalis think that Onam is the day when Mahabali comes back to life, to spend one day with the Malayalis, and all the Malayalis, out of sheer joy, celebrate Onam. Congress Vice President Rahul Gandhi on Saturday was shown black flags during his visit on the Jawaharlal Nehru University campus to meet students protesting for the release of Student Union President Kanhaiya Kumar. The protesters also raised slogans of Rahul Go Back in the varsity. Scores of students have been demanding the release of Kumar, who was sent to a 3-day police custody yesterday. Correspondent Sushil Batra from New Delhi for ANI. देश के गद्दारों को गोली मारो सालो, बंदे बंदे करता हूँ। सांकेतिक रूप से इनको फांसी पे चढ़ाया जाए ताकि देश के गद्दारों को सबक मिलने का काम हो। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों तुम्हें काम करो, देश के गद्दारों तुम्हें काम करो। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में इस अदालत में, जनता की अदालत में, इस जन अदालत के माध्यम गुलामी छोड़कर लाल गुलामी छोड़ भास्कर जी से गुजारिश करूंगा वो अरविंद केजरीवाल को फांसी पे चढ़ाए। भास्कर जी अरविंद केजरीवाल को फांसी पे चढ़ाए। लाल गुलामी छोड़ के भारत जी से गुजारिश करूंगा और विदेशी पुलिस से दोनों मिलकर सोना जी और अनिल जी टी राजा को भारत माता की, भारत माता की, लाल गुलामी छोड़कर, लाल गुलामी छोड़कर लाल गुलामी छोड़ के बोलो, हम कर मारेंगे जितने आप चिल्लाओगे, जितने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए ऐसे लोगों के बीच में। और जहां पर अफजल गुरु की जो फांसी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको फांसी होनी चाहिए क्योंकि वो दोषी था, उसने भारत माता के ऐसे कई लाल जिनको शहीद करने का काम किया उसने। आज उन माताओं के, उन बहनों के आंसू भी नहीं सूखे हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसा जो कांग्रेस का राजकुमार जिसको कहते हैं, वो राजकुमार उन लोगों के बीच में जाकर और अफजल गुरु की जिंदाबाद के नारे लगाने में उनमें शामिल हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे राष्ट्र, ऐसे जो देश के, इनको देशद्रोही होना चाहिए। ऐसा राहुल गांधी जो इन लोगों के बीच में, जहां पर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके कार्यक्रम में जाकर अगर खड़े होते हैं, ऐसे देश के, मैं कहता हूं राहुल गांधी जैसे लोग, जिसको ये सब कांग्रेस के लोग राहुल राजकुमार कहते हैं, मैं तो कहता हूं ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए और गोली शूट कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि राहुल गांधी ने आज जिस तरह से देश के अंदर, और जिस तरह से राहुल गांधी को सभी के, सोनिया गांधी को और उनको क्या मतलब है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं आज मुझे इस बात की पीड़ा है कि ऐसा जो राहुल गांधी ने जिस तरह से उन लोगों के बीच में जाकर और पाकिस्तान के मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों के बीच में जाकर उन्होंने अफजल गुरु को जिंदाबाद कहने वालों के साथ में खड़े होकर इस बात की वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र भक्त हैं या हम किसान के हित की बात करते हैं, उनको, ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूं देश निकाला दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार